Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के अलावा आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थनीति से जुड़े हुए सवाल आमंत्रित कर रहे हैं। बस ये ख्याल रखिए कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद है रंगभाष्य। Thank you, Amrish. The top stories. Prime Minister Narendra Modi to interact with leading economists in New Delhi. Finance Minister Nirmala Sitharaman participates in Halwa ceremony to mark the launch of formal printing of Budget 2019-20. And benchmark domestic indices declined for the third straight week amid uncertainty over US-China trade negotiations and rising oil prices. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट के औपचारिक प्रकाशन के शुभारंभ पर हलवा समारोह में भाग लिया और अमेरिका चीन के बीच जारी व्यापार वार्ता की अनिश्चितता और तेल मूल्यों में बढ़ोतरी के बीच शेयर बाजारों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दिखाई दी। And now for all the details. Prime Minister Narendra Modi will interact with leading economists in New Delhi in a short while from now. The meeting is expected to deliberate upon economic policy roadmap for promoting growth and employment generation. It is being organized by government think tank Niti Aayog. Sectoral experts and industrialists are also expected to attend. The meeting assumes significance as it comes ahead of the presentation of the budget on the 5th of next month by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Yamini, what would you say? The new government has just taken over the reins, and this meeting of the Prime Minister and actually the Niti Aayog along with leading economists of the country, what would you expect this to set the tone, set the roadmap for not only this budget but maybe for the next 5 years? Yes, they'll probably look at for a long-term policy objective, which should actually push the economy towards a high growth area, whereby we are seeing that there has been a slowdown in the economy at where the growth rate is about 6.8% expected. The policy matter is also likely to look at certain important issues like farmers' distress as well as unemployment. So they're going to give some roadmaps onto those sides as well. Yeah. और इस बीच चेन्नई से हमारे श्रोता अजीत अब्राहम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। Yes, go ahead, put your question. Yeah, in the new economic regime, which are the industries that could get an impetus, and which are the industries that one should look at? Yeah.
Well, infrastructure is one to look at because whenever the economy is likely to slow down, the government's role now is limited to the extent of making investments in infrastructure. And this government in the previous term also and in this term has been focusing on infrastructure. So whether it's roads, whether it's ports, whether it's airways, they are going to be making a lot of investment in the infrastructure for the development of the economy. और थाने से हमारे श्रोता गुरुनाथ जी लाइन पे हैं। हेलो गुरुनाथ जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या पूछना सर चाहते हैं? मेरा सवाल है जो बैंकों जो विलफुल डिफॉल्टर है सर, अभी रिजर्व बैंक ने भी बताया था कि घोटाले 70,000 के हुए साल भर में, कुछ 18-19 ईयर में। सर इसको रोकने का मतलब रिजर्व बैंक या गवर्नमेंट के पास में कोई यंत्रणा नहीं है, कोई उपाय योजना नहीं कर सकते सर? एनपीए भी बहुत लिमिट के बाहर बढ़ गया है सर। Yes, Yamini, what would you say? The RBI and the government is very serious about taking up the issues of NPAs, and that is why the Insolvency and Bankruptcy Code came into existence, whereby the NPA problems could be resolved. However, why the NPAs happen is primarily because of different reasons which are there. Let's say probably because your business forecasts were not correct and the economic situations have turned differently than what you had forecasted. Also, they can happen when somebody is committing a fraud on the bank by taking up loans and not repaying it back. It can also happen because of certain other reasons whereby certain costs might have escalated and which might have made it an unprofitable venture. Now, given these particular reasons, one of the reasons which the government is very serious about is breaking the nexus between the bankers, the loan takers and the politicians which is there. And it is also wanting to bring the defaulters to the court as well as to the people in by taking actions against the big defaulters. Yeah, and Yamini, very briefly, we were talking about NPAs and willful default. Fraud is altogether a separate issue. But why is this happening with corporate borrowing and lending to corporates? Whereas, in private lending, we see they have they take collateral, which is maybe double the amount of the loan. Well, when you actually go in for corporate borrowings, you don't get that much amount of collateral as it is there. However, collaterals are available to the extent of the loans that you're granting and the fixed assets that you're creating. But when you're actually starting the business or you're running the business, the particular fixed assets tend to depreciate. And by the time it becomes an NPA, the collaterals which are available to you are of not that much value as much as the loan as well as the interest which has been accumulated on it has accrued. Right. And let's take our next caller. We have Mohammad Tabriz joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. जी शुक्रिया आपका जी बहुत जानकारी मिलता है इस चीज से। हम लोग तो गरीब आदमी है, इसका जानकारी लेना चाहते हैं। जी बताइए। जैसे कि बैंक में जैसे फिक्स करने का जो डिपॉजिट है, जो ये सरकार कुछ कम कर दिया या वही रेट है फिक्स करने का? जी, इंटरेस्ट की बात कह रहे हैं वो बेसिकली कि क्या इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं या वही है? जी नहीं, इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स वही हैं। बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स अभी कम नहीं किए हैं। आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया है और उससे अभी इंटरेस्ट रेट्स पे असर नहीं पड़ा है। और वैसे भी सरकार का रोल नहीं रहता है, तो बैंक खुद तय करते हैं। ये बैंक तय करते हैं, बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या रेट्स दें। और मुंबई से हमारे चिर परिचित श्रोता मुजाहिर खान जी लाइन पे हैं। अमित जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। अब मैं आज गंगा जी के लिए आया हूँ। गंगा भाषण साहब जो है हमारे हिंदी के सवाल को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अभी रघुराम जी ने फोन किया था तो उनका जवाब को इंग्लिश में, मुजाहिर खान जी जो एक मिनट में जो सवाल भी पूछना है जो हिंदी में पूछे उनको हिंदी में जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है। नहीं, अभी कन्वर्ट कर देते हैं आप। देखिए, मैं कन्वर्ट करके आपसे हिंदी में भी बात कर रहा हूँ। मैंने जो फोन किया था, हेलो जी जी, खासा बताइए। समझ ही नहीं पाया था, हरिवीर जी ने जवाब दिया था। मेरा सवाल यह है कि जीएसटी जो लगा है, एमपीएल के ऊपर जीएसटी जो लगा है, वो एक बिल के ऊपर 69 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट और 69 रुपीज अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, जी जी, तो 40 रुपया हो जाता है जी। अब जैसे कि अब कोई भी हमारे घर में जितने भी स्मार्टफोन है वो 199 में पूरा महीना बात करते हैं जी। और यहाँ पे जो है इतना आप क्या पूछना चाह रहे हैं खान साहब? आपका सवाल क्या है कि आपको लग रहा है जीएसटी ज्यादा है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं दोनों जगह जीएसटी दो जगह क्यों लगता है? अच्छा जी जी।
जी जीएसटी आपकी तीन तरह से लगता है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और इंटरस्टेट जीएसटी। तो आपका जब भी आप जीएसटी पे करते हैं तो आप अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे पैकेज फूड भी खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपको लिख करके देंगे कि जो रेट है उसमें कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को गया और कितना स्टेट गवर्नमेंट को गया। और जो भी रेट्स हैं, जैसे आपके रेट्स हैं 18% या 28%, उसको हाफ कर देते हैं। हाफ जो है सेंटर को जाता है और हाफ स्टेट को जाता है। इसलिए दो जीएसटी तो वही है, 18 ही है। ओवरऑल परसेंट सेम रहती है, दो जीएसटी नहीं लगते, एक ही जीएसटी लगता है। उस रेट को दो जगह डिवाइड करते हैं, सेंटर और स्टेट में। Yeah. And Yamini, coming back to our discussion about the Prime Minister's meeting with the leading economists of the country, what would you say? The MSME sector, everyone acknowledges the fact that this has the potential of, creating employment and giving that much needed push to the GDP. Can we expect, some kind of, big policy announcements or some kind of big takeaways from this meeting, especially focused at the MSME sector? Well, previously the government has actually rationalized the taxes for the MSME segment because it does recognize that a large amount of employment comes from the MSME segment. Also, the Mundra Yojana and the other Yojanas have been trying to bring about greater initiation in the MSME segment itself. We do see that there can be more policy initiatives that can be taken in the MSME segment so that there is greater amount of employment that is generated. Yeah. But at times, let's take a call and we'll continue our discussion if time permits. We have Manoj joining us from Delhi. Good evening, Manoj, and welcome to Market Mantra. Good evening. Yeah, go ahead, put your question. Yeah. सर मेरे पास ना आइडिया का कनेक्शन है करीब 10 साल पुराना। फोन कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, फोन कनेक्शन। जी। उसमें पहले ये ऑफर आई थी कि आप 1000 रुपीज दीजिए और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी इसमें। अब इनका मैसेज आना स्टार्ट हो गया, आपकी वैलिडिटी खत्म कर दी है। ये कैसे खत्म कर सकते हैं इसको? ये कहते हैं आप मंथली रिन्यू करवाइए इसको। Right. Shamini, would you like to comment on it? It is increasing. ट्राई के जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से आपको वैलिडिटी लेनी पड़ेगी। जो पुराने नियम है वो बदल गए। Yeah, and earlier when they used to say it's a lifetime connection, so that is no valid. एक सर्विस ऑपरेटर, जितना मैं जानता हूँ, एक सर्विस ऑपरेटर की बात नहीं, ट्राई के रूल्स हैं which are applicable on to all the telecom operators. That is true. And let's try and take our next caller. We have Atma Singh joining us again from Delhi. हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या लोगों ने मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में तो नहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया? कहीं ऐसा हो मार्केट ड्रॉप होती जा रही, गोल्ड चढ़ता जा रहा है, इसके बारे में जरा बताएं, या वैसे ही चढ़ रहा है? धन्यवाद। जी, गोल्ड एंड मार्केट्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पर ऐसा नहीं हो रहा कि मार्केट से लोग पैसा निकाल करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक। आपकी इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आपकी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट सबसे कम है, और आपकी इकोनॉमी की अभी जो फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन है वो भी अच्छी है, और आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन भी अच्छी है, क्योंकि इन पोजीशंस की वजह से जो अच्छी हैं और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है आपकी सेंटर पे जो डिसाइसिव है और प्रोग्रेसिव है, इसलिए मार्केट्स बढ़ रही हैं। कुछ फैक्टर्स जो मार्केट्स को कंसर्निंग है या चैलेंजिंग है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और यूएस और ईरान के बीच में जो अभी टेंशन हुई है उसका चलते रहना, और जो यूएस ने अब इंडिया को नॉन फेवरेबल एरिया में, नॉन फेवरेबल पोजीशन में डाला है ट्रेड टॉक्स के अंदर, वो। Right, and joining us next is Chandrakant from Chennai. Good evening and welcome to Market Mantra. सर गुड इवनिंग। Yeah, go ahead, put your question. सर मेरे को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में क्वेश्चन पूछना है। हाउ सिक्योर्ड आर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? Yes. नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो लोन होता है जो एक कंपनी जो लेती है अपने इन्वेस्टर्स से, एंड उसको वो वापस करती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विच इज इट्स मैच्योरिटी पीरियड। तो जब उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाता है उसको पैसा वापस कर देती है।
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स काफ़ी सिक्योर हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो उसके एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करके उसे आपको पे करना पड़ेगा। वैसे अपने प्रॉफिट से भी जो पैसा बनाएगी उसका जो प्रॉफिट्स है उसमें से इंटरेस्ट पहले देना होगा, फिर डिविडेंड्स देने होंगे। पर अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और जो है आपका पैसा फिर भी ड्यू है और लिक्विडेशन पे भी आपका पैसा नहीं बन पाता तो आपका लॉस वहां पे हो सकता है। और ग्रेटर नोएडा से हमारे नियमित श्रोता एसपीएस जैन जी लाइन पर है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जैन सर। मेरा सवाल जीएसटी के ऊपर है जी। पहले जीएसटी की जगह पर एक्साइज लगता था जो सेंटर को जाता था और वैट स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। तो अभी कोई ऐसी स्टडी है कि पहले के मुकाबले अभी टैक्स का कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी पहले से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर आधा होने के पास स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा मिल रहा है या पहले से कम मिल रहा है? Yes. जी, जब जीएसटी लागू किया गया था तब ये माना गया था कि ये रेवेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए, कि जितना पहले कलेक्शन हो रहा था एक्साइज से, सेल से या बाकी टैक्सेस से, उतना ही कलेक्शन जीएसटी के थ्रू होना चाहिए। अभी काफ़ी वॉइसेस रेज हो रही हैं कि जीएसटी जो अभी लागू किया गया है क्या इससे टैक्स बढ़ा है या कम हुआ है। काफ़ी लोगों का मानना है कि बढ़ा है और काफ़ी लोगों का मानना है कि उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। तो उसके ऊपर अभी सरकार ने कोई स्टडी ग्रुप नहीं इस्टेब्लिश किया है, पर हो सकता है कहीं और जगहों पे या रिसर्च एरियाज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी स्टडी हो रही हूँ। And let's take our next caller. We have Satish Kumar joining us from Delhi. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सरकार गोल्ड को इम्पोर्ट करती है, बाहर से मंगाती है, तो ये इनके पास हिसाब कैसा होगा कि इतने सालों से आ रहे थे वो, तो हर साल के लिए अब इतना आ गया, अब इतना आ गया, यहाँ से तो बाहर भेजते तो मैं यहीं से इकट्ठा करते जा रहे होंगे, तो कितना हो गया होगा इनके पास कैलकुलेशन कितना 1000 किलोग्राम गोल्ड की बात कर रहे हैं जी जी, कि कितना एक्यूमुलेट हो गया। जी जी जी, लोग इंपोर्ट करते हैं और जितना इंपोर्ट किया जाता है वो सेल किया जाता है। उसका इंपोर्ट कितना हो रहा है, उसके ऊपर कितना टैक्स पे किया जाता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कितना इंपोर्ट हुआ है। अगर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे की गई है तो उसका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं होती। कितना किस जने को सेल किया गया वो इन्फॉर्मेशन जीएसटी के थ्रू या ज्वेलर्स के थ्रू पता चलती है। बाकी और कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं रखती कि आपके पास कितना गोल्ड है। मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर जी लाइन पे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बताइए क्या। मेरा सवाल है कि इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग किया था, लेकिन टाइम खत्म होने के पहले 50% शेयर ही कवर हो गए, तो बाकी नहीं हो गए, तो उसके लिए अभी क्या ट्रीटमेंट हो जाएगी? यस, आपने 50% शेयर्स को सेल कर दिया है और 50% शेयर्स को नहीं सेल किया है, तो वो 50% शेयर्स आपके पास ही रहेंगे। दे विल नॉट बी सोल्ड टू द मार्केट विच इज देयर। राइट। और चलते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज वर्ष 2019-2020 के केंद्रीय बजट के मसौदे के औपचारिक प्रकाशन के शुभारंभ पर प्रतीकात्मक हलवा समारोह में भाग लिया। एनडीए सरकार 5 जुलाई को वर्ष 2019-20 का पूर्ण बजट पेश करेगी। सरकार ने 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया था ताकि आम चुनाव के बाद नई सरकार के आने तक खर्चों के लिए अनुमति ली जा सके। वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने इस बजट पूर्व आयोजन में भाग लिया। इस आयोजन का महत्व इस बात से है कि मिष्ठान वितरण के बाद बजट के निर्माण और प्रकाशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को
लोकसभा में बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहना होता है। इस दौरान ये अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवारों से संपर्क भी नहीं कर सकते। इन्हें फोन और ईमेल के माध्यम से भी अपने निकटवर्ती लोगों से संपर्क करने की अनुमति नहीं होती। वित्त मंत्रालय के सिर्फ अति वरिष्ठ अधिकारियों को ही अपने घर जाने की अनुमति होती है। And let's continue with our phone calls. We have Sanjay joining us from Noida. Good evening and welcome to Market Mantra. गुड इवनिंग सर, संजय बोला हूँ नोएडा से। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। मेरा एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जिनके थ्रू मैंने म्यूचुअल फंड किए हुए हैं, तो उनका मेरे को व्यू है कि वो कह रहे हैं कि रिलायंस म्यूचुअल फंड हाउस में से आप पैसा निकाल लीजिए और कहीं पर आप दूसरे में बात करिए, क्योंकि वो अभी कुछ टेक ओवर चल रहा है। तो मैं इससे कुछ आपके सजेशन चाहता हूँ सर। Is this right or what should I do? Sanjay, as a policy, we don't discuss specific stocks or companies, but despite that, I would like to request Yamini ji for a comment. म्यूचुअल फंड्स में आप रेटिंग्स देख लीजिए और उनके जो NAVs हैं उनको चेक करिए बिफोर यू मेक अ कॉल। आप उससे पहले कि कॉल करें कि आपको निकालना है पैसा या उसमें निवेश करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट्स बढ़ रही हैं तो ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट्स ज़्यादातर स्टेबल रहेंगी तो बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स या बाकी के म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं। And Sanjay, just to add on, you can call tomorrow, that is on Sundays, we have an exclusive program focused on mutual funds with our expert Dhirendra Kumar, so you can clarify all your doubts, questions and queries with him. Let's move on and take our next caller. We have Ashok Kumar joining us from Modi Nagar in Uttar Pradesh. Good evening and welcome to Market Mantra. हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी जो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये इसका फ्यूचर क्या है? और आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर का फ्यूचर क्या है? मार्केट कैसा चल रहा है रहेगा मंडे को? जी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का स्टेटस काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी मुश्किल में है, क्योंकि उनको लोन्स पे करने थे वो नहीं पे कर पा रहे हैं और लिक्विडिटी क्रंच है मार्केट के अंदर। मार्केट्स को ज़्यादातर स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की है और कोशिश की जा रही है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाएं या टाइम प्रोवाइड किया जाए अपने लोन्स रिपे करने के लिए। कोशिश रेगुलेटर्स की जारी हैं कि हाउसिंग फाइनेंस को जितना बचा सके उतना बचाएं, पर अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और चलते हैं इस सप्ताह बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के चलते घरेलू शेयर बाजारों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट का रुख रहा। ब्याज दरों में कटौती के फेडरल रिजर्व के संकेतों के दौरान तेल के बढ़ते मूल्यों ने भी निवेशकों के उत्साह पर पानी फेर दिया। कल समाप्त हुए सप्ताह में सेंसेक्स 39,000 के आंकड़े के ऊपर रहा, जबकि निफ्टी 11,700 के ऊपर जाकर बंद हुआ। कल बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 407 अंक गिरकर 39,194 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 108 अंकों की गिरावट के साथ 11,724 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार का मिड कैप सूचकांक 96.4 अंक यानी 0.65% गिरकर 14,624 अंकों पर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.96% रहा। Yeah, and just to continue our discussion and the questions of our last caller, he also spoke about the IT and metal sector. Yeah, I mean, what would you say about the metal sector? Has things stabilized? Like we had all those issues of dumping of steel by different producers into India and loss of pricing power by domestic players and all those issues. Has they been addressed? Well, the pricing has been more or less stable, and we've seen in the metal stocks there has been a rise and a fall, which is there, but rise has been there. So metal stocks do seem to be giving a good value to investors. As far as the IT sector is concerned, if we look at the IT sector, we would find that as and when the rupee tends to
to depreciate, the stocks of the IT sectors tend to take a jump. Yeah. And automatically the IT sector right now is also the most important sector because it is the forerunner for all the industries today. So whether it's banking, whether it's manufacturing, whether it's any other, the IT and IT services are actually needed. So there is a lot of demand for those services. Yeah, Yamini, we talked about the rupee-dollar equation. Let's also talk about another big issue, the oil prices, crude oil prices. Recently, there have been tensions. Maybe, as we all know, US was probably about to launch an attack on Iran, which could have really had a very bad effect on international oil prices. What would you say, looking at the geopolitical tensions, crude oil prices, where are they headed? Crude oil prices are expected to rise unless there is a greater push from the supply side, which is there. Either the US or the Russia tends to actually put in more oil, which is there. Already there are sanctions on Iran, which is there, and there are sanctions on other countries like Venezuela and others which have been exporting oil, so which has been creating a supply gap in the market. So if US does tend to provide for the greater supplies and the Russia also tends to supply more and the OPEC decides to increase its supply, then we can see a decrease in the oil prices, but otherwise it's likely to increase only. लेकिन वो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका क्या रुख रहेगा, खास तौर से इस संदर्भ में कि अमेरिका का लगातार प्रेशर है कि जो मूल्य है वो नीचे रहने चाहिए? यूएस की कोशिश यही रही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में ज़्यादातर स्टेबिलिटी रहे, और जहाँ पे भी ओपेक सप्लाई कट्स करता है तो यूएस हमेशा आकर के ये कोशिश करता है कि वो इंक्रीज करे सप्लाई, ताकि जो सप्लाई कट्स हैं वो प्राइस हाइक्स में ना लेकर के जाए. पर जो ओपेक है वो मेजर एक्सपोर्टर है आपके ऑयल का, और उसकी जो सप्लाईज हैं वो मेजरली डिटरमिन करती हैं आपकी ऑयल सप्लाईज. जिन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं वो भी काफी मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है. Yeah, and but what would you say? OPEC will, after a threshold, OPEC will come in with a production cut, so that in order to at least artificially prop up prices, because they won't sit on the sidelines, isn't it? The OPEC association had been framed for the purposes of actually coming as a cartel to increase the prices of oil, and every time the oil prices tend to see a lower level, they tend to cut the supply so that the prices are increased. So if the prices are going on, let's say on a lower side, they always bring about cuts. And what the US and the Russia has been trying to do is has been trying to create more supply so that the OPEC cuts do not affect the crude oil prices. Right. And let's move on and take a look at international markets as well. US stocks slipped marginally yesterday as rising tensions between the United States and Iran slammed the brakes on this week's run that lifted the S&P 500 to a record high. The Federal Reserve has signaled an interest rate cut this year that sparked a rally in US stocks. But an escalation in tensions in the Middle East after President Donald Trump delivered a warning of an imminent attack on Iran weighed on sentiment. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both slipped 0.1%, and Nasdaq Composite fell around 0.2%. Very briefly, Yamini, about the Fed rate. It's having a dovish kind of a policy, which is RBI is also adopting the same somewhere. All central banks tend to adopt policies to ensure that there is economic growth, and a particular policy of accommodative monetary stance is adopted primarily to give push to the economic growth that is there. And if there is not sufficient amount of economic recovery, or there is a chance that the economy would drift towards recession, then most of the central banks take a precautionary measure of reducing the rates so that the economy gets the necessary impetus by lower interest rates and greater investments. यामिनी, अगर हम देखें लगातार 3 सप्ताह से देश के अंदर जो शेयर बाजार से उनमें लगातार ही गिरावट का रुख रहा है, आने वाले सप्ताह में आपको क्या ट्रेंड दिखाई दे सकता है? अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कंटिन्यू करती हैं तो स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी. अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसाइड कर जाती हैं
तो मार्केट्स को बढ़ोतरी की तरफ जाएंगी। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। यामिनी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Prime Minister Narendra Modi to interact with leading economists in New Delhi. Finance Minister Nirmala Sitharaman participates in Halwa ceremony to mark the launch of formal printing of Budget 2019-20, and benchmark domestic indices declined for the third straight week amid uncertainty over US-China trade negotiations and rising oil prices. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye and have a wonderful weekend. ये